Here is a question before you on the board. Okay? That question is related to the preparation of profit and loss account and capital account, which we have already discussed in the previous videos, how to prepare profit and loss account and how to prepare capital account. What is profit and loss account and what is capital account? The question is here as X and Y are two partners and their capitals are 80,000 and 60,000 respectively on 1st April 2019. Their partnership deed is also there that provides the following point. First point is transfer 20% of the profits to general reserve. Whatever profits are earned by the firm, their 20% is to be transferred to general reserve. The point number 2 is interest on capital is to be allowed at the rate 12% per annum and interest on drawings is to be charged at the rate 10% per annum. Then third point is salary is to be allowed to X and Y rupees 2,000 and 3,000 per month respectively. Then fourth point is commission to X. X is to be given 7,000 rupees commission for the whole year and profit sharing ratio, which is not specially given in the question, that is indicated a profit and loss are to be shared in the capital contribution, that is 80,000 and 60,000 in this ratio. तो simplify करेंगे तो 8:6 का ratio हमारा बनके आएगा. And now 6 point is profit for the year. Whatever profits are earned by the firm, they are 1,25,375 for the whole year, and drawings of X and Y are 40,000 and 50,000. This is the question. Now we have to prepare profit and loss account and capital account. The profit and loss account is already prepared by me. You can see here. Okay, profit and loss account, it has two parts, debit side and credit side. Debit side has two columns, particulars and amount. Credit column side also have two columns, particular and amount. Okay, so the credit side होता है, that is the income side, and debit side is also expense side, known as profit and loss account. Whatever profit is earned by the firm, which is given in the question. Okay, so I have written here first that profit 1,25,375. Now we come to the conditions given in the question. First condition was 20% of the profits. This profit is to be transferred to general reserve. I have calculated the amount and put that on the debit side. Transfer to general reserve to general reserve. Amount is 1,25,375. इसका मैंने calculate किया 20%. So that amount is 25,075. Then the next point is interest on capital and interest on drawings. Interest on capital is written here. Interest on capital 80,000 at the rate 12% per annum. तो 80,000 का 12% निकालेंगे and 60,000 का 12% calculate करेंगे. That is 9,600 and 7,200 respectively. उनका मैंने टोटल करके यहाँ पे लिखा हुआ है. उसके बाद जो हमारा पॉइंट था, that is salary to X and Y. तो salary to X and salary to Y, that is 2,000 and 3,000 per month. So 2,000 into 12, 3,000 into 12. Amounts are 24,000 and 36,000. Total is 60,000. After that, I have written here commission to Y, that is 7,000. Now I'm coming to credit side. Again, interest on drawings. Interest on drawings के बारे में इससे पहले मैंने आपको explain किया था कि if a lump sum amount of drawing is given without any date, then we have to calculate interest on drawings for half year. 6 months के लिए आपको calculate करना. Therefore, 40,000 is the amount of drawing, 10% is the rate of interest, and the period is to be applied half year. Calculation is 2,000, and on wise drawings 50,000 into 10% into for half year means 1/2. Amount is calculated 2,500. Total amount is 4,500. Right? After doing this, I have totaled both the sides. So here the total is 1,29,875. On the debit side, this amount, we have already
calculated from the given instructions, according to instructions. Now we deduct from this amount all these four figures and we find the balance 21,000. That is the final profit available for the distribution among the partners or between the partners X and Y. ठीक है, तो 21,000 जो प्रॉफिट हमारा बच रहा है लास्ट में, that has to be divided in the ratio of capital. Capital ratio is 8:6. 8:6 में जब आप डिवाइड करेंगे तो 8 to 8 करेंगे और अपॉन में दोनों का टोटल आपको लेना होता है. तो 21,000 into 8 पहले वाले पार्टनर का रेशियो और नीचे दोनों का टोटल 14. 8 plus 6. ओके, कैलकुलेटेड अमाउंट इज 12,000. उसके बाद है 21,000 into दूसरे पार्टनर का जो शेयर है दैट इज 6 upon 14. इसका कैलकुलेशन किया, 21,000 टोटल यहां पर आ गया. ठीक है, आप उस टोटल में से जब 1 2 3 4 इन फिगर्स को आप माइनस करेंगे तो 21,000 आएगा. वो अपन ने ऐसे डिवाइड किया है. तो ये इसका इनर कैलकुलेशन है कि इसमें से कितना प्रॉफिट किस पार्टनर को मिलेगा. इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया है. नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. जस्ट आई चेंज द हेडिंग्स एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह हम बनाएंगे अब कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में आपको दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं जिनको इस तरीके से बनाया जा सकता है. वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं. हम यहाँ पे दोनों पार्टनर के लिए अमाउंट के कॉलम बना देंगे एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे एक कॉलम एक्स का हो जाएगा और एक कॉलम वाई का हो जाएगा. X and then Y, X and Y. सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इसमें X की कैपिटल है 80,000 तो हम यहां पे लिखेंगे 80,000 और Y की कैपिटल है 60,000 हम यहां पर लिखेंगे 60,000. ओके, फिर उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे जो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है बाय IOC. ठीक है, 9600 7200. आफ्टर दिस हम यहां पर लिखेंगे बाय सैलरी जो हमने एक्स को दी थी 24,000, वाई को हमने पे की थी 36,000. आफ्टर दिस we write here by commission. Commission will appear only in the column of X 7,000. X को देना था, Y को देना था. Y X 7,000. ये हम X के कॉलम में लिखेंगे, Y को कुछ भी नहीं मिलेगा. उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे by P&L appropriation account जो कि हमारे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था. 12,000 इन अकाउंट ऑफ एक्स एंड 9,000 इन अकाउंट ऑफ वाई. ये सारी चीजें, ये बैलेंस है. बैलेंस के बाद इसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सारी आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड से. ओके, अब डेबिट साइड में जो एंट्रीज आएंगी दैट इज ड्रॉइंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमने लिखा ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स का अमाउंट था 40,000 एंड 50,000. उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट था वो था एक्स का 2,000 और वाई का 25. After this, we have to make the totals of both the side और लास्ट में हम यहां पे निकालेंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन. अब आपको उसका टोटल लगाना है जो मैं यहां पे नहीं लगा रहा हूं. देखते हैं, तो टोटल लगाना है आपको. इस टोटल में से इसको माइनस करना है. वॉट एवर बैलेंस इज अवेलेबल
वो आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आपको दोनों तरफ का टोटल लगा देना है। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट आप बना सकते हैं। ये जो मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर इसी अकाउंट को हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में मेथड पर अगर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो किस तरीके से बनेगा वो आपको बता रहा हूं। पहले हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको सिर्फ लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, और फिर सेम बैलेंस डेबिट साइड में आपको लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप बनाएंगे करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का फॉर्मेट यही रहेगा। वहां पर आपको जो एंट्रीज लिखनी है 1 2 3 4 और ये 2 एंट्री, मतलब ये कि कैपिटल की एंट्री अलग हो जाएगी, बाकी की जो एंट्रीज हैं वो सारी करेंट अकाउंट में आ जाएंगी। इस तरीके से हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम को भी फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको किस तरीके से बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट अगर अलग अलग बनाने के लिए कहा है तो आप अलग अलग बनाएंगे। इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइड देन यू कैन प्रिपेयर सिंपली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओके, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करके बताता हूं। वन मोर क्वेश्चन is here before you. Here, A, B and C are three partners with capitals of rupees 40,000, 30,000 and 20,000 respectively. ठीक है? B and C are entitled for a salary of rupees 2,000 and 3,000 per annum. Annually salary मिलेगी उनको। उसके बाद payable, respectively payable before division of profit. Interest on capital is to be allowed at the rate 5% per annum, and of the profit, first 12,000 divisible in the ratio 50%, 30% and 20%. जो भी प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगी उसका पहला पार्ट 12,000 रुपया जो है 12,000, that you have to divide it in the ratio 50%, 30% and 20% to A, B and C respectively, and remaining part of the profit is to be divided equally. Okay, now we are given again the profit for the year was rupees 20,100 after deducting partner's salary but before IOC. जो प्रॉफिट आपको दे रखे हैं they are given after the debiting of salary of the partners but before allowing interest on capital, and you have to prepare partners current account, capital account and profit and loss account also. And one more information, partners drawings are rupees 8,000 A, B 7,500 and C 4,000. ओके, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको दे रखे हैं A का, B का और C का। A का करंट अकाउंट का बैलेंस है 3,000 क्रेडिट, B का 500 क्रेडिट और C का 1,000 रुपीज डेबिट। ये टोटल आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो नई चीज आपके सामने आ रही है वो आ रही है, एक तो ये कि प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इन स्टेप्स, मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग रेशो में जाएगा, कुछ पार्ट अलग रेशो में जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। दूसरा, वी आर नॉट गिवन अबाउट व्हाट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो चूंकि आपको बताया गया है कि देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। हियर नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर वी आर नॉट बाउंड टू गिव एनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और वी हैव नॉट टू थिंक अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे मैंने तैयार किया हुआ है आपके सामने, मैं आपको बताते जा रहा हूं। पहले सबसे पहले आप यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट लेकर आते हैं वो आपको लिखना होता है, बट हमारे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है दैट इज गिवन आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, ठीक है। तो वी हैव टू ऐड द सैलरी एंड व्हाटएवर द प्रॉफिट आफ्टर एडिंग द सैलरी दैट वी हैव टू शो, ठीक है। तो 20,100 इज द प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। तो सैलरी हमने इसमें क्या कर दी, ऐड कर दी, तो प्रॉफिट बिकम्स 25,100. नाउ वी हैव टू गिव सैलरी टू B and C. ऑफ कोर्स कि अगर हम यहाँ पे सैलरी ऐड नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमें सैलरी की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वी हैव टू शो ऑल द एंट्रीज ऑफ एप्रोप्रिएशन। Therefore, we have added here, and now again we are debiting here salary to B 2,000 and salary to C 3,000. Total 5,000. Clear? After that, we have to give interest on capital at the rate 5%. Capitals are 30,000. 30,000 का 5% होता है 1,500.
20,000, that's 5% is 1,000 and 40,000 का जो 5% होता है that is 2,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 2,000, बी को 1,500 and C 1,000. Total is 4,500. Now, after this, we deduct from this amount 25,100 में से minus करेंगे this and this. Total is 15,600. This we have to divide in two parts. First part is 12,000 and remaining part is 36. तो 12,000 को हमें डिवाइड करना है 50%, 30% और 20%. तो 12,000 का 50% 6,000, 30% 3,600 and 2,400 is 20%. Total आ गया 12,000. Remaining बचा 3,600 which we have to divide in equal ratio. तो 1,200 each. 3,600 divided by 3. So 1,200, 1,200 and 1,200. The total profit share of A is 7,200, B 4,800 and C is 3,600. And total profit is 15,600 which is divided among the partners in this. This is the profit and loss appropriation account. जो नई चीज आपने इसमें सीखी वो है division of profit in stages. Right? Now, I'm coming to current account. Current account का balance आपको पहले बताया जा चुका है, may be debit and may be credit. So here we are given two balances of current account, that is A and B. They are credit, while of C that is debit. So first of all credit balance को हम यहाँ पे लिखेंगे by balance brought down in account of B, A and B. 3,000 and 500 और C के account में two balance brought down on the debit side 1,000. After this जो यहाँ की एंट्रीज है पार्टनर्स के नाम पर वो सारी क्रेडिट में आएगी. ठीक है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं सबसे पहले बाय सैलरी जो यहां पे आपने डेबिट की हुई है. हियर इट विल बी क्रेडिटेड सैलरी इन अकाउंट ऑफ बी एंड सी respectively. After that interest on capital is debited here, therefore it will be credited to current account. A 2,000, B 1,500 and C 1,000. After this we have divided the profit among A, B and C. That will be credited here 7,200, 4,800 and 3,600. Over. Now, अब आपको देखा है यहाँ पे ड्रॉइंग्स का फिगर. तो ड्रॉइंग्स की अमाउंट आप यहाँ पे लिखते हैं डेबिट साइड में. पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, वो कैपिटल अकाउंट बनाया था तो वहां पे भी हमने डेबिट साइड में लिखा था. यहाँ पर हम करंट अकाउंट बना रहे हैं इसलिए करंट अकाउंट में आएगा. तो ड्रॉइंग्स में यहाँ पे लिखेंगे हम 8,000, 7,500 and 4,000 in A, B and C. And after this we will calculate the balance. So first of all we will make the total of both the sides. जिस साइड में भी टोटल बड़ा है उसमें से छोटे साइड के टोटल को माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो आप लिखेंगे. तो all the credit side totals are more than the debit side totals or amounts. So therefore in account of A the balance is 4,200, then B 1,300 and C 2,600. At the beginning of the period there was debit balance in the account of C, but at the end of the year it becomes credit balance in the account of C. इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हुआ यहीं पर. Here is another question before you on the board. It is in respect of errors or past adjustment. Question is X, Y and Z are three partners. Okay, their fixed capitals are rupees 10,000, 8,000 and 7,000 respectively. They have omitted interest on capital for 3 years at the rate 10% per annum. ठीक है, and last 3 years में जो उनके profit sharing ratio है they are given as in the first year 1:2, second year 5:3:2 and third year 4:5 and 1. You have to give an adjustment entry, a single adjustment entry for the above rectification of mistake or error. Okay. तो कुल मिला के ये क्वेश्चन ऐसा है कि XYZ तीन पार्टनर्स हैं जिनकी फिक्स कैपिटल आपको दे रखी है. फिक्स कैपिटल का मतलब है कैपिटल विल नॉट चेंज ईयर बाय ईयर. ओके, एंड लास्ट कंटिन्यूअसली 3 साल तक दे हैव इग्नोर्ड टू अलाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए जो कि 10% पर एनम से दिया जाना चाहिए था. ठीक है, बट तीनों साल में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है. अब इसको हमें कैसे एडजस्ट करना है, इसके लिए कैसे वर्किंग बनानी है, लुक एट द
बोर्ड। हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया, हमने 3 अमाउंट के कॉलम बनाए, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए और एक जेड के लिए, ठीक है। और एक कॉलम हम बनाएंगे टोटल का। ये हमारा कॉलम्स हैं और ये हमारा यहां पर होगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले यहां पर हमें 3 साल तक हमने जिस चीज को इग्नोर किया है वो हम लिखेंगे IOC टू बी क्रेडिटेड। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको अलाउ नहीं किया है, जो कि हमें अलाउ करना चाहिए था। तो किस किस साल में कितना कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर और फिर थर्ड ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट चूंकि कैपिटल फिक्स है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल का फिक्स रहेगा, 10% से है। तो फर्स्ट ईयर में 1000 इसको मिलेंगे, 800 इसको मिलेंगे और 1700 इसके अकाउंट में होंगे। टोटल होगा 1500 नहीं 2500। Like this again in second year also the same amount 1800 and 700 total 2500। फिर थर्ड ईयर again same amount 1800 700 and total 2500, ठीक है। We'll make the total of all these 3000 2400 and 2100 total 7500, right। There is nothing to be debited। यहां पे डेबिट वाली कोई भी अमाउंट में गलती नहीं हुई है। नाउ अब हमें क्या करना है, अमाउंट ऑलरेडी credited as profit year 1, year 2, year 3, ठीक है। रेशियो है फर्स्ट ईयर का 1:2, सेकेंड ईयर के लिए 5:3:2 और थर्ड ईयर का है 4:5:1। फर्स्ट ईयर का टोटल अमाउंट जो आपने मिस्टेक की है दैट इज 2500। सेकेंड ईयर का भी टोटल अमाउंट 2500 और थर्ड ईयर का भी टोटल अमाउंट 2500, राइट। फर्स्ट ईयर में आपने 2500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जिससे आपका प्रॉफिट एनहेंस हो गया, उस साल का प्रॉफिट आपका बढ़ गया जिसको आपने डिवाइड किया होगा। और उस साल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था हमारा 1:2। इट मीन्स 2500 जो कि आपको इस तरीके से डिवाइड करना था, आपने वैसे डिवाइड करने के बजाय 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड किया। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, आ जाएगा तो 500, तो ये आ जाएगा 500 1000 and 1000। The same error is repeated in the second year. Again, the amount of interest on capital in the second year is 2500, which has been divided in the ratio 5, 3 and 2. तो ये हो गया 1250, 750 and 500, ठीक है। 2500 divided by total of this 5 plus 3 plus 2, 10 से डिवाइड किया हमने तो आ गया 250, 250 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 1250, देन 750 3 से मल्टीप्लाई किया और लास्ट वाले के लिए 2 से मल्टीप्लाई। एंड लास्ट अमाउंट इज ऑल्सो 2500 which has been divided already in the ratio 4, 5 and 1. टोटल इज सेम, तो यहां पर आएगा 1000, 2500 divided by 10 means 250, 250 multiplied by 4 is equal to 1000, 1250 and 250, right? We'll make the total of this 7500, ठीक है। इसका टोटल करेंगे 1750
इसका टोटल करेंगे 3000 और इसका टोटल करेंगे तो 2750। ठीक है, अब ये हमारा एक अमाउंट है, इसको हम बोलते हैं ए बोल देते हैं और इसको नाम दे देते हैं बी। इस अमाउंट में से आपको इसको माइनस करना है, तो ये होगा हमारा एडजस्टमेंट ए माइनस बी। ये वो टोटल है जो आपको पार्टनर को देना चाहिए था और ये वो टोटल है जो आपको आप उसको ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो इसमें से आपने इसको माइनस किया, ये आ रहा है 250। इसमें से आपने इसको माइनस किया, ये आ रहा है माइनस के 600 और इसमें से आपने इसको माइनस किया तो ये आएगा 450। ठीक है, ये दो प्लस में आ रहे हैं और ये माइनस में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इसको दे देते 3000 बट यू हैव गिवन लेस अमाउंट, फर्दर यू हैव टू गिव दिस अमाउंट। तो आप इसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। इसको देने थे आपको 2400 बट यू हैव गिवन ऑलरेडी 3000, इट मीन्स 600 वी हैव टू रिकवर फ्रॉम हिम, तो हम इसको डेबिट करेंगे और यहां पे 450 क्रेडिट करेंगे। ओके, फाइनल एंट्री जो हमारी होगी एडजस्टमेंट एंट्री, वो होगी, इसको हम डेबिट करेंगे, इन दोनों को क्रेडिट करेंगे, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। इससे हम 600 वापस लेंगे, उसमें से 250 हम इसको दे देंगे और 350 हम इसको देंगे। इस तरीके से ये टोटल और ये टोटल इक्वल होना चाहिए। दिस इज द पास्ट एडजस्टमेंट। इसको सॉल्व करने का तरीका इससे डिफरेंट भी हो सकता है, वो मैं कभी आपको बाद में फिर बताऊंगा, कभी फ्यूचर में, कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है अल्टरनेटिवली। अदरवाइज दिस इज द वे, सिंपल तरीका है, कोई खास चीज नहीं है। और आपके जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं आते हैं, उसमें 1 या 2 पॉइंट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट उसमें डाल दिए जाते हैं बस, बट उससे बड़ा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, हियर इज अ स्मॉल क्वेश्चन बिफोर यू ऑन द बोर्ड in respect of guarantee of minimum profit. A and B are two partners in a firm. On 1st April 2019, they decided to take another partner in the firm C for 1/5 share with a minimum guarantee of profit of ₹50,000. टोटल की जो मतलब क्वेश्चन की जो टोटल चीज है वो ये है कि A और B पहले से दो पार्टनर्स हैं. What is their ratio of profit sharing? That is not given. So in the absence of this information, we always assume they are equal partner. तो इसका मतलब ये कि before the admission of C, A and B are equal partner. Now they are taking C as a new partner, जिसको कि 1/5 शेयर दिया जाएगा. इसको 1/5 शेयर देने के बाद रिमेनिंग जो शेयर होगा that will be divided among the partner A and B again in their old profit sharing ratio until unless we are given something else. Okay. अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 देयर प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 2 लाख. ठीक है, नाउ वी हैव टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कि किस कंडीशन में कितना कितना प्रॉफिट किसको फाइनली मिलेगा. इफ द गारंटी इज गिवन ओनली बाय ए, इफ द गारंटी इज गिवन बाय ओनली बी, इफ द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, मतलब ए एंड बी दोनों ने गारंटी दे रखी है, वो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो ए और बी का रेशियो है. And last is guarantee is given by A and B in the ratio 3:2. ठीक है, how we will solve this question. ठीक है, ये वर्किंग नोट जो आपके सामने बना रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 लाख रुपीस को डिवाइड करेंगे, जिसमें से 1/5 पार्ट हम इसको दे देंगे, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा 40,000, वो चला जाएगा इसके हिस्से में. राइट, अब रिमेनिंग बचेगा वो होगा हमारा 1,60,000 दैट विल बी डिवाइडेड between A and B in their profit sharing ratio, mutual profit sharing ratio, that is equally to 80,000 and 80,000. Now, according to question, C is given a guarantee of minimum 50,000, but according to profit sharing ratio, his share in profit is only 40,000. That is
देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ₹10,000 इन अकाउंट ऑफ सी। तो आप यहां पर सी के अकाउंट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे 10,000। ओके, अब सपोज करें कि मैं केस ए को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। इन केस ऑफ ए गारंटी इज गिवन ओनली बाय ए। यहां पर सिर्फ ए ने गारंटी दी है, बी ने कोई गारंटी नहीं दी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि द होल अमाउंट, होल डेफिशिएंसी ऑफ सी विल बी एग्जिस्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ ए। तो यहां पे हम ए के अकाउंट से 10,000 रुपीज माइनस करेंगे एंड बी के अकाउंट से कुछ भी माइनस नहीं होगा। फाइनली जो फिगर होगा वो 70,000 विल गो टू ए, 80,000 टू बी एंड 50,000 टू सी। इस तरीके से सी को उसका गारंटीड प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि बियर कौन करेगा, ए बियर करेगा। नाउ अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सेकंड पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं, तो ये जो 10,000 मैंने ए के अकाउंट से माइनस किया था, ये केस बी बन जाएगा, जहां पे यहां से माइनस करने के बजाय सेम अमाउंट 10,000 यहां से माइनस कर दी जाएगी। ओके, इसके अकाउंट में बचेंगे 70,000 और इसको मिलेंगे 80,000। क्लियर? मतलब केस ए में हमने ए के अकाउंट से माइनस किया था, तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व अगर हम करते हैं केस बी से, तो हम सेम अमाउंट बी के अकाउंट से माइनस करेंगे, ए के अकाउंट से कुछ भी माइनस नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं सी के केस में सॉल्व करता हूं, केस सी, गारंटी इज गिवन बाय फर्म। फर्म मतलब ए एंड बी बोथ आर गिविंग गारंटी इन देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज इक्वल। तो यहां पर जो 10,000 सी की शॉर्ट फॉर्म है, उसको हम ए और बी में इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5,000। तो यहां पे इसके अकाउंट से 5,000 माइनस होगा और इसके अकाउंट से भी 5,000 माइनस होगा, एंड द फाइनल फिगर इज 75,000 इन अकाउंट ऑफ ए एंड 75,000 in account of B and 50,000 in account of C. The same question if solved by in case D, then यहां पर केस D आ रहा है, ये अमाउंट मैं यहां से हटा देता हूं और अब हम देखते हैं कि यहां पे लास्ट केस में जो गारंटी दी है वो उन्होंने इक्वल रेशियो में नहीं दी है, बल्कि 3:2 के रेशियो में दी है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉट एवर डेफिशिएंसी इज शोन बाय सीज अकाउंट विल बी बोर्न बाय बी एंड सी इन द रेशियो 3:2। 3 part of deficiency will be borne by A and 2 parts by B. तो 10,000 को टोटल हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में, 3 + 2, 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो वो आता है 2,000। फिर उस 2,000 में 3 पार्ट कौन लेगा, A, मतलब 2,000 into 3, 6,000 जो है वो हम इसके अकाउंट से माइनस करेंगे एंड 2,000 हम इसके अकाउंट से माइनस करेंगे, एंड फाइनल प्रॉफिट इज 74,000 एंड 78,000। ठीक है, इस तरीके से ये गारंटी का जो क्वेश्चन होता है हम यहां पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब जिस भी केस में आप सॉल्व कर रहे हैं उस केस के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें आप जो अमाउंट दिखाएंगे, या तो ये जो वर्किंग मैंने यहां करके बताया है आप अकाउंट में भी करके दिखा सकते हैं, या फिर अकाउंट में फाइनली ये फिगर दिखा सकते हैं और अलग से वर्किंग नोट बनाकर आप शो कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको अगला क्वेश्चन करके